दोस्तों आज के इस सफ़र में यूपीएससी टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं राजीव दयपुरिया। राजीव दयपुरिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के टॉपर हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में इनका फर्स्ट रैंक है। इन्होंने बीटेक किया है आईआईटी गुवाहाटी से 2016 में और ये रहने वाले हैं भिंड मध्य प्रदेश के। राजीव, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। राजीव के बारे में मैं और बताना चाहूँगा कि राजीव का कैंपस से प्लेसमेंट हुआ प्राइवेट सेक्टर में। इनका इनिशियल प्लेसमेंट था सोनी एरिक्सन में। एरिक्सन के बाद फिर ये जोनिपर नेटवर्क में इन्होंने जॉब किया। उसके बाद जॉब छोड़ करके इन्होंने एनटीपीसी ज्वाइन किया और इस पीरियड में इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी भी की। तो क्या राजीव आपने अपनी प्रिपरेशन जॉब के साथ साथ की? Sir, first I would like to thank you for giving me this opportunity to interact with you. Sir, it is like a aspiration for every aspirant to interact you, and this I had in my mind since first day. And sir, the question that you asked, sir, I got campus placement in 2016 from my college itself, and then I worked in Ericsson for 3 years, and then I switched to Juniper Network, sir. There I worked for 1 year, and then I wrote GATE 2021. I got rank around 77 there, sir. And currently I joined NTPC in January 2022, sir. तो अब आपने लास्ट ईयर भी आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था। जी सर। बट लास्ट ईयर आपका नहीं हो पाया। जी सर। और इस बार आपकी फर्स्ट रैंक है। तो लास्ट ईयर के और इस साल के परफॉर्मेंस में आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि आपने क्या डिफरेंट किया इस बार? Sir, as such, last year, if I compare, I did a lot many efforts last year than compared to this year. अच्छा जी सर, बिकॉज इस साल सर क्या है, मैं कम्प्लीटली ट्रैवल ही कर रहा था सर जनवरी से। बिकॉज ट्रेनिंग वाज गोइंग ऑन। आई वेंट टू सीमाद्री विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, देन आई वेंट टू हैदराबाद फॉर some days, then I sir went to Maharashtra, Solapur for some days, and then I came to Noida. When I came to Noida, sir, that time offline test series of mains was going on. So that time I snatched 1 month somehow, because my friends helped me a lot. They allowed me to take some time from the classes, and then I was able to prepare well. And so you mean to say your last year preparation has helped this year? Yes sir. Primarily you have given complete commitment last year. Last year. This year you was in job because of traveling and you Yes, could not sir. find much time. Yes, And sir. you could get only 2.5 months. Yes sir, that only I prepared for mains, and luckily So I what was went right this year? Because last year you could not get your first rank. और Yes, इस sir. बार आपकी first rank आ गई। Yes, sir. Last year तो selection भी नहीं हो पाया yes था। sir. The reason I would say is like the positive thinking. Last year I had that calculation in my mind all the time कि how to get selected in top 19 for a general category student. So that calculation was not fitting in my mind. So always I was thinking that selection will not happen. But this year, since day one, I was positive, like I will get some seat this year. So that was the major difference, sir. So I would say. your selection to NTPC was through the GATE score? Yes sir. क्या GATE में rank थी आपकी? Sir, 77. GATE 77. Yes sir. Many students in their previous interviews when I was taking topper stock, they Yes, told that कि preparation of mains exam helps a lot in the GATE score. आपका क्या experience है कि ES mains की preparation GATE में help करती है? Sir, आगे चल के देते हैं। It is reverse for me. हाँ Because GATE I wrote first, I got rank in GATE first, हाँ and ESE I failed, and first time I was experiencing the mains in 2021 when I already get the result of GATE. Then I would say like GATE preparation has helped me in mains. ग्रेट। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, किसी के लिए ES की प्रिपरेशन गेट में हेल्प करती है, किसी को गेट की प्रिपरेशन ES में। बेसिकली द सिलेबस इज कॉमन, Yes, sir. मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन, Yes, sir. सम सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। चलिए आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या चैलेंजेस हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल कैसा है, प्रीलिम्स में और मेंस में अप्रोच कैसी होनी चाहिए? Sir, in prelims you have to touch each and every topic. सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं सर, तो वो किसी न किसी टॉपिक से आ जाएगा। लेकिन मेंस में क्या होता है सर कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, और उसमें ये है कि 8 क्वेश्चन है सर, तो उसमें से 5 ही करने हैं सर। तो ज़रूरी नहीं है कि तुमको सब थोड़ा कवर choice करके मिल जाना जाती है। मतलब प्री में सर ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें GS भी रहता है सर। लेकिन मेंस में आई वुड से लाइक कंपेरेटिवली थोड़ा कम पढ़ना कम पड़ता है, लेकिन एफर्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि लिखना Depth सर बहुत ज़्यादा पड़ता है। चाहिए। जी सर। बट हॉराइजन कम है, जी सर। क्योंकि टेक्निकल खाली लिमिटेड है। जी सर। और उसमें भी थोड़ा ऑप्शन मिल जाता है कि आप
5 क्वेश्चंस कैसे कैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहेंगे, जी उसके सर। हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए। जी सर। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो 5 करना जरूर है 8 में से, लेकिन जी। फर्स्ट एंड फिफ्थ तो कंपलसरी होता है। यस सर। साथ में उसमें भी सब सेक्शंस हैं, मिक्सअप हो जाते हैं क्वेश्चन। जी सर। जी सर। तो मोरलेस सिलेबस तो पूरा ही करके जाना पड़ता होगा। टेक्निकल पूरा करके जाना पड़ता है सर। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि प्री में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, कहीं से भी वो क्वेश्चन उस पर बन जाएगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और मीन्स में सर थोड़ा सा अगर आप चाहें कि कुछ आपको टफ लग रहा है तो थोड़ा सा उस पर बाद में टाइम दे सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं जी सर। और गेट के बाद फिर ईएस का सोचते हैं, तो जी सर। लगभग 6 से 7 टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं एक्स्ट्रा, बेसिक इलेक्ट्रिकल, जी सर। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, मेजरमेंट, मटेरियल साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। जी सर। तो ये सब्जेक्ट्स कितनी वेटेज रखते हैं और स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? सर ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल जो कोर सब्जेक्ट हैं उनके ही बराबर वेटेज रखते हैं आई वुड से, और उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतने ही अच्छे डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा अगर ईएस में आपको क्वालिफाई करना है सर। और तो इन सब्जेक्ट्स की कहीं और किसी एग्जाम में भी हेल्प होती है कि सर बाई जो- चांस अगर ईएस के अलावा भी अगर दूसरे एग्जाम्स हैं जी तो सर। किन किन एग्जाम्स में सर जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी मैंने MPPSC DSP रेडियो का एग्ज़ाम दिया सर, अच्छा, तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट थे जो ईएस के थे। तो टेक्निकल के लिए सर मुझे कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ा, जस्ट रिवाइज करना पड़ा। ओनली जीएस पोर्शन जो भी स्टेट का रहता है वो आपको अलग से वो पढ़ना पड़ पढ़ना जाता है, पड़ेगा। बट यू विल एक्सेल इन टेक्निकल। तो दोस्तों जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन की एक खास बात क्या है कि आप पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस पढ़ते हैं और सिलेबस का हर हिस्सा पढ़ते हैं। ईएस के अलावा भी जितने एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, पब्लिक Yes, सेक्टर्स के, उन एग्जाम्स में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक ये हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है। ये Yes, आपका एक्सपीरियंस रहा। यस ईएस के प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है? सर आई वुड से लाइक आई वुड गिव द टेस्ट सीरीज द प्रायोरिटी अच्छा, on top one, because the reason is I myself has experience. I didn't get any time to solve the previous year questions, neither Okay. of pre neither of mains. टाइम नहीं मिला आपको? 2021 attempt sir I gave without solving previous year questions. Only test series I was able to give, and that too I qualified because of that. ओके। And 22 also I tried to solve some previous year questions, but still 4-5 subjects it was left. I was not able to complete. And how was your experience of MADG test series? Sir, MADG test series is holistic and it covers all the subjects, all the topics. If you give all the 15 tests of mains, you will cover, I would say you will cover each and every topic. कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहें कि टेस्ट सीरीज ने आपको हेल्प किया? Sir, कोई जो स्टूडेंट्स yes, के sir. साथ शेयर करना चाहें? Yes, sir. I would say like there was one miracle that happened for me, sir. मिरेकल? Yes, I would say it a miracle. क्योंकि जब घर से टेस्ट सीरीज लिखता था ऑफलाइन मेंस की, तो उसमें क्या होता था सर, कभी भी मैं 3 से 3.5 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाता था सर। ओह, तो फिर जब यहाँ पे मैं आया, लास्ट के 3 ऑफलाइन टेस्ट होते थे, सेंटर पे आके देने होते थे। तो जब मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा कि स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो टॉपर्स की जो कॉपियाँ हैं वो मैंने सर एक बार देखी कि यहाँ पे कैसे लिख टॉप रहे हैं, रैंकर्स हैं उनकी जो कॉपी टॉप देख ली रैंकर्स आपने? थे। अच्छा, जो मेडी जी। के टॉप रैंकर्स जी, हैं। तो जो पहला ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पे दिया सर, उसमें तो सर मेरी कोई रैंक नहीं थी, वही 30-40 के आसपास आई होगी और वैसी आती रहती थी। लेकिन एकदम से ये मिरेकल हुआ कि देखने के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट मैंने दिया था सर, उसमें मेरी रैंक 1 या 2 आ गई थी सर डायरेक्टली। तो उसमें आपने क्या सीखा है? आपको क्या ट्रांसफॉर्म हुआ कि पहले आपकी 30-40 रैंक आ रही थी, फिर आपने टॉपर्स की Yes, आंसर sir. शीट देखी Yes, sir. एंड वहाँ से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, तो क्या ऑब्जर्व किया? सब मेन ऑब्जर्वेशन ये था कि मैं होल टाइम इस पे ध्यान दे रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि टॉपर शायद टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर ले जा रहे हैं सारे। लेकिन जब मैं उनकी सीट देख रहा हूँ तो पता चल रहा है टॉपर इज ऑल्सो सॉल्विंग द सेम क्वेश्चंस विच आई एम चूजिंग। ओनली डिफरेंस इज दैट ही मेक्स द चॉइस वाइज और उनको फिर अटेम्प्ट कर देता है वो तुरंत। इसका मतलब कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट In एंड mains. स्पीड इज ऑल्सो Yes, इम्पोर्टेंट। sir. आप जो पहले 3.5 या 4 क्वेश्चंस कर पा Yes, रहे थे, sir. पूरे 5 नहीं कर पा रहे यस थे। सर। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस है। कई लोग टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं लेकिन वो टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में नहीं करते हैं। यस तो इसको टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में करना है, एग्जाम एनवायरनमेंट में करना है। यस सर। फिर आपको ये देखना है कि जो हाईएस्ट स्कोरर्स हैं उनकी अप्रोच क्या है और Yes, sir. आपकी अप्रोच क्या है, फिर उसको आपको इम्प्रूव करना है। दिस Yes, इज sir. व्हाट यू हैव डन। यस सर। ग्रेट। हम बात करते हैं जीएस पेपर प्रीलिम्स की। Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स जिनका गेट पर फोकस ज़्यादा रहता है क्योंकि ऑब्वियसली गेट का सिलेबस कम है और गेट Yes, से sir. अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं, यस सर। ईएस की लिमिटेशंस हैं। तो जो जीएस वाला सेक्शन है उस सेक्शन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर आई वुड से लाइक GS आई नेवर डिड एनी कोर्स
till date. Never did any course. The only thing I was doing, like I was solving some questions of test series, and then I took 2-3 booklets of MedEasy, like environment, ethics, and project management. Only these 3 I read from the booklet myself. And then, sir, when I am giving test series, I used to see like the question that is coming, I have half information or 25% information. That also how I can solve correctly, like elimination technique. That I was like very good at, and I used to most of the questions were correct. And second thing trick I used was जो मेडिजी सर जो वीकली जो करंट अफेयर देता है, मैंने वो सारे प्रिंट करवा लिए थे सर. अच्छा, जो टेलीग्राम चैनल में अपलोड होते हैं. जी सर, वो प्रिंट करवा के मैंने क्या किया सर, वो सारे पढ़ डाले मैंने. जैसे एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे एक बार रीडिंग लगा दी और दोबारा एक बार रिवाइज कर दिया. तो उसमें मेरे 3 सब्जेक्ट तो कवर ही हो गए सर. एक तो करंट अफेयर कवर हो गया सर, इन्वायरमेंट कवर हो गया, ICT कवर हो गया. और सर जो UPSC है सर, 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ जो करंट अफेयर में जो टॉपिक होता है इन सब्जेक्ट से उसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं. तो इससे सर मेरे को बहुत हेल्प मिली है. इवन कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन सर ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत रिकॉल नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो हमने एक बार पढ़ रखा है कहीं पे तो हमको पता लग जाता है, को तो एलिमिनेट कर लोगे, एलिमिनेट कर लेते हैं सर. तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए कि जो GS वाला सेक्शन है, इस GS सेक्शन में इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन. यस सर, क्योंकि 100% चारों ऑप्शंस की जानकारी होना तो रेयर है. यस सर. लेकिन अगर आपने करंट अफेयर सही से पढ़ा है, जैसे इन्होंने बताया राजीव ने कि जो मेडिजी के टेलीग्राम चैनल में वीकली करंट अफेयर्स अपडेट होता है, उसमें आप वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहे, लास्ट में उनकी प्रिंट आउट निकाल करके पूरा आपने रिवाइज कर लिया. वैसे मेडिजी की एनुअल करंट अफेयर्स भी आती है, वो भी आप देख सकते थे, और टेस्ट सीरीज से आपको हेल्प मिला. जी सर. इंटरव्यू वाज द फाइनल स्टेज. यस सर. और इंटरव्यू में इस बार जिस तरह के फीडबैक मिले हैं स्टूडेंट्स के, कुछ लोगों का मानना था कि उनसे नॉन टेक काफ़ी पूछा गया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स अभी भी ये कह रहे हैं कि उनसे टेक्निकल पूछा गया. स्पेशली मैकेनिकल वालों ने बताया कि उनके पैनल में ज़्यादातर नॉन टेक और डेफ बेस्ड क्वेश्चंस थे. जी सर. आपका क्या एक्सपीरियंस? सर, फॉर मी इट वाज दिस ईयर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3. आई हैड गुड अमाउंट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस ऑल्सो. Very tricky questions also were asked. Secondly, non-tech questions were also asked, like something related to current affair they asked, and something related to my def also they have asked a lot. The first question they had asked was like, why you are going for, like my salary was a lot in MNC because I am graduate from IIT. Obviously MNC में तो salary अच्छी मिलती है. And they were saying like my salary is decreasing. The first question was that your salary is decreasing. Why you want to come here? So I tackled that question there very well. And then they asked some questions like who got the Nobel Prize and all, because sir I write poetry, so that has benefited me last year in the interview. The chairman has given me the chance to tell something which they have not asked. तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? Sir, interview I didn't prepare much. Last year also, this year also I got only 10 to 12 days to prepare only, sir. Job की वजह से? Yes sir. So what I did was 5 to 6 subjects which are very core to electronics, only that I saw from the interview booklet, and rest I was preparing for my whatever I have done in the job, and rest all like current affair and. Okay. तो mock interviews ने आपको कोई help की? Yes sir, a lot, because I would say one thing, sir. I used to come first 2 mock interviews this year I gave without any preparation. यहाँ पर? Yes sir. Yes sir. अच्छा. Because I was preparing for some other exam that time, and without preparation I came here, sir. Okay. And I was having that fear कि sir may scold me कि you are coming without a preparation. Means they will get to know. Obviously कि अगर performance अच्छी नहीं जाएगी तो. Yes sir. Obviously teachers. So I was having fear, and I had an option to not go appear for the interview, but I had one thing in my mind कि if I overcome this fear and perform well in this situation without preparation, then definitely I will do good in the final interview. देखिए यही तो सीखना होता है, और अगर आपने मॉक इंटरव्यू में ठीक कर लिया तो एक तो वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और अगर ठीक नहीं करा तो इम्प्रूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा. जी सर. कुछ और सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि अब लास्ट मोमेंट है, अब 2 महीने बचे हैं, इस समय कैसे तैयारी करें? सर, firstly I would say like I did my preparation with the job and a private job, so time constraint was always there, but I had one thing in my mind कि time is never less, your efforts are incomplete. Your efforts are incomplete. So even I say it to my friends, even if 1 month is there, you can do one thing. You don't
take your notebook and revise. You just take the test series that you gave the whole year. You just do that in 1 year and do the revision through that. You are That great itself. inspiration for those who are preparing through job and they are doing job and they are simultaneously preparing. You are a Yes. great inspiration for them. Yes. Because many students, they do not develop the confidence that they can do it with the job. Yes. And if you have done that too with such a top rank, Yes. then definitely it is an inspiration and many will be inspired from you. Yes. And friends, when there is will, there is way. So you start working on your will. And once you develop, yes, you want to do it, this confidence, then you can do it. And if you want any support from ADG, whether it is for the engineering services or for the Indian Railway Management Service or for the GATE examination, then ADG is always there at any stage of your exam. And if you are willing for civil services, then next step is next IAS. So this is made easy for engineers by the engineers. I hope this discussion with the toppers will help you in making your strategy, and you will find some insights of these toppers, ki how they prepared, what were their sources of study, and from which background they belong. The basic idea of toppers talk is that you may get inspiration from toppers that they have done, you can also do. And if you are a selected candidate and you want to share your success story with these students, then we invite you. You are welcome in ADG Toppers Talk. Stay happy, stay safe. Jai Hind.